So question number 1 is A can complete a work. So A can complete a work in the 8 hours. So 1 by 8 will be the A can complete a work in 8 hours and B can complete a work in 12 hours. Then in how many days will they complete the work together? So 1 by 8 plus 1 by 12, it will be 5 by 24 or 4 by 4 by 5. So that will be the answer. Next question is A and B together complete a work in A and B. So A plus B together complete a work in 1 by 15 and B alone can do, that is 1 by 20. So after minus doing this A plus B minus B का वर्क अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें A का we will get the A's work. So it will be 1 by 16 or 60 days is the answer of this work. A, B and C can complete a work in 20, 30 and 40 days. What time will they take and complete a work for together? So A, B and C तीनों का वर्क बता रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, A, B and C. तो इनको डायरेक्टली एलसीएम लेना है. सो 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 40 and after taking LCM 120 will be LCM. So answer will be 120 by 13. Next question is question number 5. A and B and C together doing a work in 30 days. So 1 by 30 किसका हो जाएगा? A plus B plus C minus A and B completing the 50 days. So 1 minus B, A plus B minus कर देंगे तो 5 minus 3 upon 150 and that will be the 1 upon 75. Okay, 1 upon 75 and that will be the 75 minutes and that will be the answer of this question. Next is Jyoti can do 3 by 4th of the work in 12 days. So Jyoti can do 3 by 12 works into the 12 days. Okay, into the 12 days. So that is answer is 1 by 16 and 1 by 16. And Mala can do 1 day work in the Mala can in the two times more expert than Jyoti. Mala is a 2 time more expert and from the Jyoti. So it was Jyoti is 1 by 16. So Mala will be 2 times of the Jyoti. So it will be the 1 by 8. Okay. अब अगर माला का कितने दिन में काम करेगी? So she will do the work in the 8 days. She will do the work in the 8 days. Next question है Ram can complete 1/3 of the work in 3 days. So Ram can complete 1/3 of the work in the 3 days. So it will be the 1 by 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. So it will be 1 by 9 and Sham can complete 1 by 4 work into 4 days. So it will be the 1 by 16. Okay, it is Ram and this is about the Sham. Okay, now by adding both of that work, so 1 by 9 plus 1 by 16, that will be 25 upon 144 will be the answer. Next question is about A can complete a work. So question number 8, A can complete a work का जो 1 by 3rd part है of the work in 5 days. So 5 into 3. So A can complete a entire work in the 15 days actually. Okay, 15 days में वो work करता है and B can complete the 2 by 5 part
इंटू द 10 डेज, तो बी का वर्क हो जाएगा 2 इंटू 5/2, सो दैट विल बी द 25, दैट विल बी द 25 डेज. सो अब दोनों टुगेदर काम करेंगे तो 1/15 प्लस 1/25 and then will be that will be the 9 and 3/8, that will be the 9 3/8. Now next one is question number 9 है 10 है महेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 15. तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि महेश और सुरेश जो हैं वो काम करते हैं द कंप्लीटेड वर्क इन द 4 days विद द हेल्प ऑफ नरेश. 1/4 मतलब 1/4 में नरेश की हेल्प से काम कंप्लीट हो गया और दोनों ने एंड बोथ कंप्लीटेड द वर्क इन द 1/10 प्लस 1/15. So after solving this equation we will get the answer 1/12. तो यहाँ करना क्या है, just to take the LCM and just solve it. So this is completed. Now next question है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, द एफिशिएंसी एंड टाइम आर ऑलवेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो दे रखी है, सो दिस एफिशिएंसी इज द पी एंड क्यू टू कंप्लीट ए वर्क. ये क्वेश्चन है 26. द एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू टू कंप्लीट ए वर्क आर द रेशियो 3:4. Find the ratio of the number day and would take to complete the work. Ratio of the number of the day, तो ये जस्ट इसका इन्वर्स होता है तो इट विल बी द 4:3 हो जाएगा. रेशियो कितना हो जाएगा 4:3. रेशियो विल बी द 4:3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 26 क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days. तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 24. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ए और बी जो हैं दोनों मिलके एक काम को 1/20 वर्क मतलब 1/20 कंप्लीट है वर्क इन द 30 days. तो ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहे थे. दे वर्क टुगेदर फॉर द 20 days. अब इन्होंने 20 दिन तक काम किया. दे वर्क टुगेदर 20 days मीन्स 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क उन्होंने किया. रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 2/3 इक्वल्स टू 1/3. ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 20 days. अब जो रेस्ट ऑफ द वर्क है इसको ए ने कितने में कंप्लीट किया था 20 days में. तो ये हो जाएगा ए ने काम किया था 60 दिन का. ठीक है, तो ए डेज वर्क फॉर द 60 days. सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है ए वर्क विद डबल स्पीड देन बी. 27 में बोल रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है. तो ए वर्क कर रहा है 2x एंड बी वर्क कर रहा है x. ठीक है, सो ए वर्क्स विद डबल स्पीड ऑफ बी इफ़ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 12 days. ओके, सो 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/12. दिस इज गिवन एक्चुअली. सो आफ्टर सॉल्विंग x विल बी 18 days. सो A will do work in the 18 days. So B will do work in the 18 days. So A will do 2 into 18. That will be the 36 days. That will be the 36 days. Next is A and B complete a work in 12 and 18 days respectively. Question number 31 पे आ जाते हैं और 30 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. सो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 times ऑफ द बी. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 3x, दिस इज x. ओके, सो नंबर ऑफ द डेज जो इन्होंने वर्क किया था, इफ़ बी टेक्स 20 days मोर देन ए. अगर बी को ए से 20 days मोर दिखते हैं लगते हैं, सो ए कंप्लीट ए वर्क देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट.
ओके, ए एंड बी का है 3x एंड x, और नंबर ऑफ द डेज जो थे ए के x है और बी के 3x हैं, ठीक है। तो बी टेक्स एक्स्ट्रा टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है नंबर ऑफ द डेज के अकॉर्डिंग, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है 20 दिन मोर ले रहा है। बी टेक्स 20 डेज मोर, मीन्स यहाँ पर आएगा 2x इक्वल्स टू 20 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अगर टाइम टेकन बाय a जो है वो x है तो ये तो हो जाएगा 10, और टाइम टेकन बाय द b है दैट इज़ 3x, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं एफिशिएंसी एंड द नंबर ऑफ द डे। तो एफिशिएंसी हमें जो बता रखी है दैट इज़ 3 एंड 1, और जो नंबर ऑफ द डेज बता रखे हैं 1 एंड 3। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1/3 माइनस 1 इंटू 20 कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली 10 आ जाएगी। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी a की 10, ये आ गया तो 3 इंटू 10 आ जाएगा, दैट विल बी द 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता एंड गीता, क्वेश्चन नंबर 32 है। सीता एंड गीता कंप्लीट ए वर्क फॉर 1/15 प्लस 1/20 रेस्पेक्टिवली, मतलब 7/60 डेज में दे कैन कंप्लीट ए वर्क। ओके, अब ये 7/16 है, ठीक है। इफ़ दे वर्क साइमल्टेनियसली, सीता स्टार्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क शुड बी कंप्लीटेड। तो जैसे ही उन्होंने वर्क स्टार्ट किया तो सीता, इफ़ दे वर्क अल्टरनेटिवली एंड सीता स्टार्ट द वर्क अल्टरनेटिवली वाली, सो वर्क डन इन द 16 डेज, क्योंकि वो अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं तो 16वें दिन का काम बताना है। तो 7/16 इंटू 16/2 सो दैट विल इक्वल्स टू 14/15, और रिमेनिंग वर्क है 1 माइनस 14/15, तो ये हो जाएगा 1/15 रिमेनिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क 12 एंड 18 डेज। तो ये ए हो गया, ए एंड बी दे कैन कंप्लीट ए वर्क 12 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब इनका रेशो हो जाएगा 3:2, 3:2 का जो है ये रेशो हो जाएगा, और टोटल है इनका 36, ओके। तो ये कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 एंड 18 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क, देन दे वर्क बाय वन बाय वन, एंड हाउ मच टाइम वुड बी देन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो ये एक बार इन्होंने वर्क स्टार्ट किया, देन वर्कड 1 by 1 फॉर 1 डे, सो हाउ मेनी वर्क वुड बी टेकन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो इसमें क्या करना है हमें कि पहले दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। व्हेन 2 person वर्क अल्टरनेटिवली, जब भी दो इंसान अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 2 × 18 इक्वल्स टू 216 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, ठीक है। 216 क्या आया, इसका प्रोडक्ट आ गया, और इसको हमने डिवाइड करना है 12 + 18 से। 12 + 18 कितना है, 30 हो जाएगा। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6, ठीक है। तो रिमाइंडर 6 बच गया, तो ये हो जाएगा 6/18, और इसका इस पर वर्क ऑफ द सेकंड पर्सन, तो डबल कोटेंट का होता है रिमाइंडर अपॉन वर्क ऑफ द सेकंड पर्सन का वर्क 18 है, ठीक है। तो 6/18 एंड डबल ऑफ द क्योटेंट, तो क्योटेंट का डबल हो जाएगा 7 × 2 = 14,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक अल्टरनेटिवली इनको सोल्व करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इसको अल्टरनेटिवली चलाया गया। वेट अ मिनट, ये बोल रहा था कि ए एंड बी completed वर्क इन 12 and 18 days. A started the work and then work one by one for 1 day. How much time would be taken to complete the entire work? तो यहाँ पर रेशो भी आया था 3:2 का, तो 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 से 7 टाइम्स प्लस 1/3 करेंगे तो 14 and 1/3 विल बी द आंसर। इसको मैं अलग मेथड से बताऊंगी आपको फिर से, इसमें क्लियरली सॉल्व भी नहीं है। नेक्स्ट इज ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days. सो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर. तो ए का वर्क जो है, ए ने 3 दिन तक वर्क किया था, मतलब 3 × 1/18 मीन्स 1/6 जो था दैट वॉज द ए का वर्क। ठीक है, then started to work together. B left the work before the completion. Find the total number of the days taken to the get the work completed. So remaining work होगा 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6। तो वर्क डन बाय A + B, A + B का वर्क कितना है 1/18 + 1/12, तो ये है 5/36। तो ये जो 5/36 है, तो 5/6 को अगर हम डिवाइड कर दें 5/36 से तो आंसर आ जाएगा 6 days, और टोटल नंबर ऑफ द वर्क हो जाएगा 6 + 3 = 9 days। तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा था ये कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क 1/18, 1/18 में ए कंप्लीट कर लेगा। ठीक, और ये काम कर रहा है टोटल 3 दिन तक, तो इसका काम हो जाएगा 1/6। सो वर्क ऑफ द ए विल बी द 1/6, वर्क ऑफ द ए विल बी द 1/6। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास वो है 5/6 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों कितना वर्क करते हैं 5/36 वर्क करते हैं दोनों। सो इसको डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग को 5/36 से डिवाइड कर लिया। तो जब डिवाइड किया तो आया हमारे पास 6 days आ गया। ठीक है, 6 days आ गया। इसको जस्ट कट डाउन किया तो 6 + 3 टोटल वर्क कितने का कर रहे हैं 9 days का, दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एंड सरस्वती कैन हार्नेस्ड ए फील्ड इन 8 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। तो गंगा और जो सरस्वती हैं वो एक फील्ड को हार्नेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। ठीक है, तो 1/8 और 1/12 करेंगे यहाँ पर भी, गंगा और सरस्वती। सो 1/8 + 1/12 एंड आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5/24। ठीक है, 5/24 तो वर्क हो गया, और जो वर्क 8 घंटे में किया गया था, अब आगे ये क्या बोल रहा है 5/24 आ गया। फिर ये बोल रहा है दे स्टार्टेड टू द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क इन सॉरी इफ गंगा स्टार्टेड द 9 AM and then they work alternatively. If the Ganga started the harvesting 9 AM and they work alternatively for 1 hour, then when the harvesting would be completed. So अब यहाँ पर ये बोल रहा था कि वर्क डन हुआ 2 hours का 1/8 + 1/12, तो ये आ गया 5/24। अब वर्क डन 8 घंटे में कितना वर्क हुआ था, तो 8 घंटे में जो वर्क हुआ है, वर्क इन द 8 hour इज 5/24 इंटू 8/2 इंटू 8/2
सो ये वर्क हो जाएगा 5/6, 5/6 पार्ट वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये 5/6 से 5/6 वर्क तो कंप्लीट हो गया एंड वर्क डन इन द 9 आवर्स। 9 आवर्स में कितना वर्क हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 1/8 हो जाएगा अगेन, तो ये हो जाएगा 23/24। रिमेनिंग वर्क होगा 1/24 में, सो 1/24 डिवाइड बाय 1/12 इक्वल्स टू 1/2, तो टोटल टाइम हो जाएगा 9 एंड 1/2। तो इसको ये अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चंस में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वैसे इसको रेशियो से भी कर सकते थे हम। रेशियो से कैसे करना है कि जैसे 8 एंड 12 ये इनका रेशियो है, 8 एंड 12 दिस इज़ द रेशियो, तो ये हो जाएगा 3:2, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना है 24 है दोनों का वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली चल रहा था, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 दिन तक अल्टरनेटिवली ऐसे ही चलेगा। 3+2 फिर 3+2 फिर 3+2, तो 3+2 प्लस 3+2, तो ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में जो 5वां दिन आएगा उस दिन हो जाएगा 3+2, बट लास्ट में 5वें दिन में 3+1/2 हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा 9 एंड 1/2, वर्क हो जाएगा 9 एंड 1/2। तो टाइम जो कंप्लीशन में लगेगा 9 बजे इसने स्टार्ट किया था, 9 + 9 1/2, टोटल ये हो जाएगा 18 और 30, 18:30 हो जाएगा। दैट मीन्स 6:30 पर इनका काम कंप्लीट हुआ होगा। पेन चलने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि वर्क डन बाय द रहीम, सो करीम की एफिशिएंसी इज़ 40% मोर देन रहीम। करीम की एफिशिएंसी क्या है, 40% ज़्यादा है। तो रहीम की एफिशिएंसी कितनी है, सो एफिशिएंसी ऑफ द रहीम, तो एफिशिएंसी ऑफ द रहीम दैट इज़ 1/20। रहीम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1/20। और करीम का जो वर्क है, करीम का वर्क जो है रहीम के वर्क से 40% ज़्यादा है, तो 140 वटेवर करेंगे तो 7/100 आ जाएगा। तो दोनों का वर्क हो जाएगा 120 + 7/100 इक्वल्स टू 12/100, तो ये हो जाएगा 8 एंड 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1/4। ठीक है, 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 53। सो पी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1/4 इन द 10 days। ओके, तो 10 पी टू कंप्लीट ए वर्क दैट इज 10 × 4। पी कंप्लीट कर रहा है 1/4 वर्क को 10 दिन में, मतलब कि 40 डेज में कर रहा है। टाइम टेकन बाय द क्यू, अब जो क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क ऑफ द 15 दिन में। ठीक है, तो ये जो सेम वर्क है इसको क्यू कितना कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है एंड इसका 40% कर रहा है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द क्यू टू कंप्लीट ए वर्क, तो ही इज़ कंप्लीटिंग ए वर्क इन 15 days। आर कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन द 13 days, तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर 75/2 days में कंप्लीट कर रहा है ये वर्क को। अब टाइम टेकन बाय आर के लिए, तो आर ले रहा है 13 दिन 1/3 वर्क में, तो इंटू 3 करेंगे तो 39 डेज लग रहे हैं इसको। और टाइम टेकन बाय एस जो है 7 days में 1/6, तो 7 × 6, तो ये ले रहा है 42 डेज। ठीक है, तो इसने पूछा कि लोवेस्ट टाइम पीरियड किसने लिया है,
तो लोवेस्ट टाइम पीरियड यहाँ पर लिया गया है हमारे क्यू ने सबसे ज़्यादा कम टाइम लिया है। क्यू का टाइम है 75/2। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय द ए कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 1/6 टाइम्स टेकन बाय द बी टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो लेट द टाइम टेकन बाय द बी ने लिया है x डेज। ठीक है, वर्क डन बाय हिम इन द 1 डे, बी का वर्क डन है 1/x। हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द ए इज x/6 डेज। ए का आधा वर्क कितना है, तो ए का वर्क जो है, सो ए का वर्क है x/6, तो 6/x इंटू 1/2, तो हाफ हो जाएगा 3/x। ठीक है, 3/x हो गया। तो पहले का काम था 1/x प्लस 3/x, और टोटल लग रहे हैं 1/10 दिन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था ये, कि टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इज 1/6 ऑफ द टाइम्स टेकन बाय द बी टू कंप्लीट द वर्क। इफ दे टेकन 10 days to complete the work, then in how much time B alone can complete a work। तो लेट्स बी जो कंप्लीट कर रहा है x डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो वर्क डन बाय द 1 डे हो जाएगा 1/x। हाफ ऑफ द वर्क डन हो जाएगा x/6 है किसका, a का वर्क। तो यहाँ पे a कितना ले रहा है 1/6 पार्ट, तो x/6 से मतलब 6/x इंटू 1/2 करेंगे तो 3/x वर्क हो जाएगा, जो कि a ले रहा है। तो यहाँ पे 1/x प्लस 3/x इक्वल्स टू टोटल टाइम लग रहा था 1/10 का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डेज विल बी द वैल्यू ऑफ द x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, A complete a work in 20 days and B complete a work in 15 and C can in 12 days. For that, how many days will be taken by A to complete that work if B help him for 1 day and C help him on the next day। ठीक है, तो एक काम करने में 1 day ऑफ द वर्क निकालना है, तो A प्लस बी का जो वर्क है दैट इज 7/16। 1/12 प्लस 1/15 करेंगे तो 7 और a प्लस सी का जो वर्क है दैट इज़ 2/15। 1/20 प्लस 1/12। अब 2 दिन का वर्क बताना है, तो a प्लस बी प्लस a प्लस सी करेंगे तो दैट विल बी 1/4। ठीक है, तो टोटल वर्क 4 साइकिल बताए गए हैं इसने, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो टोटल डेज कितने लग रहे हैं, 4 तो लग रहे थे डेज, इंटू 2 कर देंगे इसको तो 8 डेज लगेंगे टोटल इसको। तो ये क्या बोल रहा था, A कैन कम्प्लीट ए वर्क 20 डेज एंड B कैन कम्प्लीट ए वर्क 15 डेज। दोनों को जोड़ा तो 7/16 आ गया, एंड C टेक्स 12 डेज फॉर दैट, तो A प्लस C करा तो 2/15 आ गया। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द A टू कम्प्लीट दैट वर्क इफ B हेल्प्स हिम टू 1 डे एंड C टू द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस A प्लस C किया तो हमारे पास आया 1/4। ये 2 डेज का वर्क था, तो 1/4 और साइकिल कितनी चल रही है, 4 टाइम्स चल रही थी। तो टोटल वर्क ऑफ द 4 साइकिल, क्योंकि पहले A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर C कर रहा है, फिर एक दिन में ये A वापस कंप्लीट करेगा, फिर नेक्स्ट डे में इसका C वापस इसको हेल्प करेगा। तो ये 4 की साइकिल थी, तो 1/4 इंटू 4 इक्वल्स टू 1। टोटल डेज लगेंगे दैट विल बी द 2 इंटू 4, 8 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है A एंड B। चलो क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, इट इज सेइंग A takes 50% extra time than B
तो ये हो जाएगा ए एंड बी। ए इज़ टेकिंग 50% एक्स्ट्रा देन बी, तो ये 3x है, ये 2x है, ठीक है। और एफिशिएंसी इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये 2x हो जाएगा और ये 3x। If they complete the work together in 18 days, then how much time would be taken by the B to complete separately? So 1/3x plus 1/2x इक्वल्स टू 18 days बता रखा है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा 6x 2 + 3 इक्वल्स टू 1/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 15। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2x, 2 × 15 मतलब 30 days लग रहे हैं किसको, बी को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 days। तो 3/4 ऑफ द वर्क कैन कंप्लीट इन 12 days, ठीक है। तो ज्योति अगर इसको 1/12 दिन में कंप्लीट कर रही है, मतलब 1/16 आ गया, ठीक है, 1/16 आ गया। माला इज़ डबल स्किलफुल देन ज्योति, तो 16/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 days तक माला वर्क करेगी, और वो कितनी, शी इज़ डबल एफिशिएंट देन द ज्योति। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 2 times द एफिशिएंसी ऑफ बी। तो ये ए बी एंड सी, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 1 है, एंड बी इज़ डबल ऑफ द सी। सी की एफिशिएंसी जो है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 2 times ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की अगर 2 है तो ए की 4 हो गई, एंड बी की जो है वो ए से सी से डबल है, सी की 1 है तो बी की 2 हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी। अब डेज कितने लगेंगे, ये तो डेज लगेंगे 1/4, 1/2 एंड 1, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको एलसीएम निकालेंगे तो 1:2 ये आ जाएगा हमारे पास रेशो। सो 1/2 + 1/2x इक्वल्स टू हमारे पास आया, और हम इसको लिख सकते हैं x 2x एंड 4x, ठीक है। ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं हम। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे इसने क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ द 2 times ऑफ एफिशिएंसी, ये बोल दिया, ठीक है, कंप्लीट। फिर ये बोल रहा है कि टुगेदर ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 4 days। तो 1/x + 1/2x दैट इज़ कम्प्लीटेड इन द 4 days, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, ठीक है। देन सी कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो ए और बी तो कंप्लीट कर रहे हैं 6 में, तो 6 और सी का कितना आया था रेशो, हमारे पास 4 था, तो 4 × 6 कर लेंगे तो हमारे पास सी का भी वर्क आ जाएगा 24 days में। क्या करता है, सी उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन एंड ए बॉय कंप्लीट ए वर्क 20, 30 एंड 60। तो ये एक मैन है, हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंगेज विद द 2 men 8 women सो दैट वर्क कंप्लीट इन द 2 days। ये बोल रहा था कि एक आदमी है, ठीक है, मैन वर्क कर रहा है 1/20, मैन वर्क कर रहा है 1/20, ठीक है, प्लस वुमेन वर्क कर रही है 1/30 अगेन, सो 1/30 वुमेन वर्क कर रही है, और टोटल वुमेन कितनी है, 8 है, ठीक है, और टोटल मैन कितने हैं, 2 हैं, ठीक, प्लस x जो कि बच्चे हैं, ठीक है, और बॉयज़ हैं थोड़े, सॉरी, तो बॉयज़ कर रहे हैं 1/16 में जो कि x है जिनकी वैल्यू, और ये तीनों मिलके जब काम करते हैं तो हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंगेज विद द 2 men एंड 8 women सो वर्क कुड बी कंप्लीट इन 2 days। 2 days में इनको कंप्लीट करना है, दैट मीन्स 1/2 के बराबर रख लो इसको। तो जब इनको सॉल्व करेंगे हम टोटल को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ए हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम निकालना है और सॉल्व करना है, और x की वैल्यू निकालनी है जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी
इसमें शो भी नहीं हो रहा अच्छे से। ओके, सो आज के लिए इतना ही।